Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and we do have a third dedicated line, that's 2371 7117. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. Good evening, Sonu. गुड इवनिंग रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है। हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं: 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Sonu. The top stories. India is not only self-sufficient but has surplus food grain production, says Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. Foreign investors pump in over 20,500 crore rupees into the Indian capital market so far in June, and southwest monsoon reaches Maharashtra and Gujarat. भारत खाद्यान्न के मामले में सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं है, बल्कि खाद्यान्न का उत्पादन खपत से अधिक है, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। विदेशी निवेशकों ने जून में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली और मानसून की वर्षा महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुंची। And now for all the details. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has emphasized on increasing private investment in the agriculture sector to boost growth. He said that the increase in private investment will increase prosperity in the agriculture sector, which in turn will increase self-reliance and prosperity in the country. Mr. Tomar called upon scientists to contribute in increasing agricultural production and mitigating difficulties. He was addressing an international webinar organized by CCS University Meerut and a national webinar organized by Junagadh Agricultural University. Mr. Tomar said India is not only self-sufficient but has surplus food grains production. He said in connection with attracting private investment in the agriculture sector, Prime Minister Narendra Modi has announced a provision of 1 lakh crore rupees for developing agricultural infrastructure. Similar provisions have also been announced for fisheries, animal husbandry, bee farming, herbal farming, food processing, etc. The minister said, the Prime Minister has said that unless the villages become self-reliant, the country cannot prosper. During the coronavirus crisis, Mr. Tomar said Indian farmers produced a bumper crop and crop harvesting continued at normal pace during the lockdown. He said sowing of kharif crops has been 45% more than last year. It shows the resilience of Indian villages and farmers, he added. Mr. Tomar said no other government has provided so much fund for agriculture and farmers' welfare as the Modi government. He said PM Kisan scheme alone has allotted more budget than the whole agriculture budget previously. He also stressed on linking more and more farmers to 10,000 new farmers producer organization whose formation has been announced recently. और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के पहले कॉलर नोएडा से राहुल। राहुल, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि मेरा फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल टेम्पटन फंड सुपर इंस्टीट्यूशनल प्लान में मेरा इन्वेस्टमेंट था। ऑल्दो मैंने उसको मार्च में रिडीम कर लिया था, बट उसमें जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो है उसमें वो अभी भी पड़ा हुआ है।
आज या कल के न्यूज में है कि उसमें शायद वोडाफोन आइडिया ने कुछ इंटरेस्ट पेमेंट रिपे किया है, तो हमें उसमें कितने मिलने के चांसेस हैं? और दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि जो गवर्नमेंट ने जो 26A वाली जो नई फॉर्म में कुछ बदलाव लाए हैं, तो उसको थोड़ा क्लियरली बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर से क्लियरली पता नहीं चल रहा है और ट्रांजैक्शन के बारे में। और तीसरा एक क्वेश्चन था कि अभी जो हमारा इमरजेंसी फंड है, उसमें से कुछ पोर्शन हम क्या गोल्ड में एलोकेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? थैंक यू। ओके राहुल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यस धीरेन्द्र। पहला सवाल, हाँ, ये एक छोटी सी खुशखबरी है कि दूसरी फंड कंपनी में का इन्वेस्टमेंट रिलायंस म्यूचुअल फंड का हाइब्रिड फंड में जो एक्सपोजर था, वहाँ पे भी एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो और वहाँ पे वोडाफोन आइडिया से इंटरेस्ट आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोडाफोन में अभी तक जो हम मान रहे थे कि यहाँ पे पैसा आएगा नहीं आएगा क्या होगा, अभी तक उम्मीद ये है कि पैसा आना चाहिए। लेकिन फ्रैंकलिन टेम्परटन का काफी बड़ा पैसा है। आपको ध्यान होगा मार्च पहले जब ये सेग्रीगेट हुआ था तो उस समय पूरे फंड में करीब 7% था। तो अभी तक उम्मीद करना चाहिए फंड मैनेजर इस फंड का जो 7% पैसा जो आपका सेग्रीगेट हो गया था और एक तरह से वो अटका हुआ है, वो अगर वोडाफोन आइडिया का पूरा पैसा, क्योंकि अभी तक रिलायंस म्यूचुअल के जो स्कीम में शुक्रवार को ये जो पैसा है ये केवल आया है, केवल ब्याज का, लेकिन इसमें एक बड़ा कैपिटल और पूरा इन्वेस्टमेंट और उसका इंटरेस्ट भी ड्यू होगा। वो अगर, और उसकी जून एंड तक उसकी उम्मीद है। वो जो बॉन्ड था इस फंड में जो सेग्रीगेट हुआ था वो जून एंड में, शायद ये जून दूसरे सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में ये ड्यू है। तो देखा जाए, उम्मीद है कि ये पैसा आ जाना चाहिए, तो आपका जो पैसा सेग्रीगेट हुआ था वो पैसा मिल जाएगा। 26A में जो अंतर आया है उसके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी नहीं है। और हाँ, अभी हाल फिलहाल जो कुछ भी हुआ है उसका पैसा मुझे लगता है कि इमरजेंसी फंड में नहीं, ये आपके एसेट एलोकेशन का पार्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्योंकि एक इंश्योरेंस के तौर पे सोने को देखें और इमरजेंसी फंड को छेड़छाड़ ना करें। इमरजेंसी फंड पूरा ऐसा होना चाहिए जो कि सचमुच में इमरजेंसी में रियलाइज हो सके। राइट, let's take our next caller. We are joined by Sanju from Madhya Pradesh. Good evening Sanju and welcome to Market Mantra. जी सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर ये सवाल मेरा ये है, ये जो जी आपके जो वो चल रहा है इसमें हमको क्या वो मिल सकता है? हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बैंक के बारे में ना सर। हाँ हाँ, तो इसमें हमको कोई भी मतलब हमारा जो है तो आज तक कोई भी वो नहीं मिल रहा हमको फायदा इसमें। शायद ये जो स्पेशल डिपॉजिट कर रही है सरकार उसके लिए एलिजिबल है नहीं है? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। म्यूचुअल फंड से जुड़े ही सवाल जहां तक हो सके इस कार्यक्रम में पूछें। जितेंद्र है दिल्ली से हमारे अगले कॉलर। जितेंद्र, सवाल पूछिए। Good evening to the entire team and Dhirendra ji. Good evening, welcome. My question is more of your valuable opinion. Like the world is fragmented into two, dichomatic views, I should say. One is that they are saying that it is a start of a new bull market. Another view, they are saying no, it is a bear market rally. So what should a common investor do? Thank you, sir. Yes, Dhirendra. It doesn't matter. If you have invested for the long run, possible that this is the start of a bull market, or it could be, or the bull market is part of, for some time, or there could be a big decline. It doesn't matter. Can you really benefit from it? I don't know. I think the important thing is your investment time frame, and all the bull market and bear market, you know it with precision. You exactly know it only after it has happened, not before that. So धीरेन्द्र, जो आप कह रहे हैं लॉन्ग रन या ब्रॉड इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम का थोड़ा सा आप बताएंगे कि लॉन्ग रन अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए लॉन्ग रन क्या आप कहेंगे? नहीं, मैं पहले भी बोलता था कि हमेशा 5 साल से ज्यादा समय जिसमें कि बाजार का साइक्लिकलिटी ओवरकम हो जाता है। तो 5 साल में अगर आप 5 साल की लगाते हैं तो मुझे लगता है कि उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि पिछला 5 साल जो है वो SIP के रिटर्न की आज की अगर हम देखें, पिछले 5 साल से अगर कोई लगा रहा हो तो कोई खास रिटर्न नहीं मिला है, बल्कि कुछ फंड में तो उसमें नेगेटिव रिटर्न भी है। लेकिन ब्रॉडली ये काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति भी है।
अगर हम आम स्थिति देखें और अधिकतर समय लंबा हिस्ट्री भी हम देखें, मुझे लगता है 5 साल में लोगों को ये 1 साल तो हमें भूलना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ भी था। कंपनियों की आमदनी में बढ़त की बात तो छोड़ दीजिए, कितना गिरावट हुआ या किस तरह से कंपनियां विथस्टैंड कर पाई, हमें केवल इसी के बारे में चिंता करना है। और ये चिंता करने का कोई फायदा नहीं है कि बुल रन है कि बियर रन है, बियर फेज है। पैसा बन गया तो आपका बुल रन है। 5 साल से कम का समय, 5 साल से ज्यादा का समय ही है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एलोकेशन आपका होना चाहिए। Right. And let's move on and take our next caller. We have Aditya joining us from Thane in Maharashtra. Good evening and welcome to the program. Yes, sir. Yeah, go ahead. My question is very basic. What is, you talk about stock and bond market. So what is basically bonds? And the Axis Blue Chip funds are shown in top when we search Google in top mutual funds. So what is the reason that Axis Blue Chip fund is shown in top? Okay. Yes, Dhiren. Stock market is simple. You know, stock market is a place where long-term capital is raised and traded. And long-term capital could be, selling equity, the ownership or shares of a company. And bond is when companies borrow money. They issue bonds. And as any bond, like a deposit that you experience of a bank, they have a term and they carry an interest rate. And depending on how risky or how safe your investment in that company is, or how financially stable or strong that company is, the interest rate can vary. Assuming a 10-year bond offered by two companies, one which is financially very strong will actually give you a lower return because your returns are safer, as compared to a shakier company or a weaker company, which will give you a higher return, simply because investors are assuming a higher return. And that, whether it is strong or weak, is reflected in the credit rating. Why Axis? So this is what a bond is, and why Axis Blue Chip is considered to be a good fund. One is that all blue chip funds, they invest in large, large companies with a strong track record. And Axis Blue Chip has proved to be a very good, it has performed very well. If you look at its performance, its 5-year return is about 6% today, as compared to, very weak performance. But even Blue Chip, even if you look at, compared to most other funds, it has been able to withstand the decline best in the last 6 months. Or 1 year, this fund is down about 6% as compared to the BSE 100, which is its benchmark. A benchmark was comparing it, which is made up of top 100 companies for the large cap funds, is down about 15%. So this has fallen less as compared to other funds in its category, or compared to other funds, and a fund which is falling less. So that is why it is proving to be a good fund. It has followed a simple principle of investing in strong companies, companies which make money all the time. Many a times I was little doubtful earlier that the company is way too focused on high quality and investing in strong companies without taking into account the valuation. So whatever it looks like, the company has withstand the decline much better. That's why it's considered a good fund. अगले कॉलर हैं हमारे दिल्ली से मनोज। मनोज, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे को एक तो ये पूछना था कि किसी हिंदी अखबार में भी आपका आर्टिकल आता है क्या? और दूसरा सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं और अभी इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा पैकेज भी दिया है, तो आने वाले 7-8 साल में हम स्मॉल कैप फंड से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं क्या? दैनिक जागरण में मेरा एक कॉलम छपता है काफी सालों से, शायद रविवार को ही छपा करता है। तो दैनिक जागरण रविवार का एडिशन देखें। इस स्टिमुलस का उद्देश्य काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि जो कंपनियां बहुत दिक्कत में, पहले तो जो लोग बड़ी दिक्कत में उन्हें पैसा पहुंचाया जाए। कंपनियां जो बहुत दिक्कत में आ गई हैं
एक दो महीना 3 महीना अगर कारोबार बंद हो जाए तो सबसे कमजोर कंपनियां जिनकी लिक्विडिटी की दिक्कत होगी उन्हें आसान तरीके से लिक्विडिटी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इन सब चीजों का फायदा केवल जो बहुत ही दिक्कत में कंपनियां हैं उन्हें डूबने से बचाना है, न कि इसके वजह से जो दिक्कत हो रही है उसका समाधान होगा। ये जो स्टिमुलस है उसका जरूर फायदा होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो बंद हो जाएंगी वो नहीं होगी या उन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा, उन्हें उधार आसानी से मिल पाएगा। अगर वो ब्याज अपना नहीं दे रही हैं तो बैंकर उनको तुरंत अभी फौरी तौर पर वसूली पे नहीं लगेंगे। लेकिन इन सब चीजों का मुझे लगता है कि ये जब तक हमारा इकोनॉमी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं होता है, नॉर्मलाइज नहीं होता है, कंपनियां दोबारा वापस पूरी तरह से काम नहीं करना शुरू करती हैं, कंज्यूमर का डिमांड अगर शुरू नहीं आता है, लोग कॉन्फिडेंटली अगर अपने नौकरियों के बारे में नहीं है तो वो जब तक दोबारा से खरीदारी नहीं शुरू करते हैं। सर्विसेज, भारत बहुत बड़ा सर्विस प्रधान देश है, तो यहाँ सर्विसेज के जब तक रिस्टोर नहीं होता है और लोग उसको अवेल नहीं करते हैं तब तक बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा। आपका जो प्रमुख प्रश्न है कि स्मॉल कैप कंपनी में फायदा होगा, हाँ मुझे लगता है कि स्मॉल कैप कंपनी में भी भारी गिरावट हुई है और 7 साल के टाइम पीरियड के लिए अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप फंड बड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन स्मॉल कैप में लगाने के पहले आप सोचें कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। बुरे समय में स्मॉल कैप जिस तरह से गिरता है वह उस वजह से अच्छे पुराने निवेशक भी इसमें काफी चिंता में पड़ जाते हैं। तो जब स्मॉल कैप फंड में आप पैसा लगाते हैं तो आप देखें कि आप क्या उस तरह के भारी गिरावट के लिए भी बीच में आप तैयार हैं और उस समय आप अपना पैसा नहीं निकालेंगे, तभी आप स्मॉल कैप फंड में लगाएं। इतनी लंबी अवधि में मुझे लगता है कि स्मॉल कैप फंड काफी प्रॉमिस होल्ड करते हैं, बशर्ते कि आप बनाए रखें अपना निवेश। Right, and joining us next is Gaurav from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, Market Mantra team. Good evening, Dhiren ji. Yeah. ये पिछले 5 साल के परिवेश में एफडी ने बेटर रिटर्न दिया है, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि हम लोगों ने जिसने भी म्यूचुअल फंड में लगाया उतना रिटर्न नहीं दे पाई है। तो अगले 5 सालों में क्या आपको लगता है कि ये एफडी या गोल्ड बेटर रिटर्न देगा या इक्विटी इज स्टिल अकॉर्डिंग टू बेटर ऑप्शन? और क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है के नाम पे लोगों ने बहुत पैसे लगाए हुए हैं, काफी लोग लगा भी रहे हैं, आपको लगता है 5 साल अच्छे रहेंगे या कैसे चलेगा? यस धीरेन्द्र। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप उम्मीद तो यही है, और अगर आप दूसरा नजरिए से देखें तो चूंकि जिस तरह से एफडी में रिटर्न की कमी हुई है, एफडी से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्सेबल होता है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि एक एडवांटेज हुआ है कि अच्छी कंपनी के शेयर भी सस्ते हुए हैं, जो पिछले 2-3 साल से, हालांकि बाजार कभी जोर से चला नहीं, उसके बावजूद अच्छी कंपनी के का जो शेयर है वो कभी सस्ता नहीं हो पाया था। वो ये जो मार्च में जो गिरावट हुई थी बाजार के रिकवरी के बावजूद बहुत सारी अच्छी कंपनी के शेयर काफी अफोर्डेबल रेंज में आ गए। तो एक ये दूसरा कारण है। तीसरा कि बाजार खत्म नहीं होता है, कंपनियां दोबारा, और 4-5 साल में मुझे उम्मीद है, लेकिन ये पूरी तरह उम्मीद इससे है कि अच्छी कंपनियां ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, ज्यादा मुनाफा कमाएंगी, और इस उम्मीद पे अभी भी मैं कायम हूँ। ये जरूर ये दिक्कत है, पिछला 3 महीना तो कंप्लीट वॉश आउट है, अगला 6 महीना भी हो सकता है, नॉर्मलाइज होने में समय लगे, बीच में बहुत सारे बिजनेसेस को हो सकता है कि परमानेंटली नुकसान हो। लेकिन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बहुत अधिकतर कंपनियां, सिनेमा हॉल और एयरलाइन जो कि सीधी तरीके से अफेक्टेड है, शायद उन्हें बदलने में और उनमें खुशहाली आने में बड़ा समय लग जाए, लेकिन उसके अलावा बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जहाँ पे नॉर्मलिटी आएगा, दोबारा से लोग वहाँ का अर्निंग रिस्टोर हो पाएगा, और उसमें अगले 6 महीने 8 महीने को छोड़ दें तो मुझे उम्मीद है कि 5 साल में आप फिक्स्ड इनकम से मिलने वाला रिटर्न और महंगाई को आप बीट कर पाएंगे। एक दूसरा चीज ये भी है कि कितना रिटर्न मिलेगा। ये इस बारे में मुझे लगता है कि ओवरऑल रिटर्न में बड़ी गिरावट आएगी, एफडी के रिटर्न में गिरावट आएगी, महंगाई की दरों में कमी आएगी, क्योंकि अभी चीजों के दाम बढ़ने से अभी हम दूर हैं। महंगाई अभी तुरंत रफ्तार से बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन और महंगाई नहीं बढ़ेगी, ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, तो इक्विटी से मिलने वाला जो रिटर्न है, अगर वो कभी थोड़ा भी बेहतर हुआ
तो वो रिटर्न काफी मैग्नीफाई हो जाएगा। और लेकिन इक्विटी से मिलने वाला लॉन्ग टर्म रिटर्न की उम्मीद भी हमें अपनी कम करनी चाहिए। जो पिछले दशक में या पिछले 20-25 साल में जिस तरह का 12, 15, 18% का रिटर्न दिखता था, अगर वो घट के 12-13 तक 10-12% भी हो जाए तो मुझे लगता है वो एक अच्छा रिटर्न होगा। और इस रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में हमें कमी करनी चाहिए। और धीरेन्द्र जी, वैसे भी आमतौर पर आपके जो किसी का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है उसमें कुछ एफडीज भी होने चाहिए, सोना भी होना चाहिए और इक्विटीज भी होनी चाहिए, एक मिक्स होना चाहिए। जी हाँ, नहीं वो तो डाइवर्सिफाई आपको करना ही चाहिए। लंबे से लंबे समय के पोर्टफोलियो में भी फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड इनकम रिटर्न मिलना एक अलग बात है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में आप उसको रीबैलेंस कर पाए। और जब बाजार में भारी गिरावट है तो एक जगह से दूसरी जगह पैसा आप अपना बदल पाए, और आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए भी फिक्स्ड इनकम जरूरी है। तो फिक्स्ड इनकम जरूर होना चाहिए। और आपका लंबे समय का निवेश, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर आप लंबे समय, आपको बहुत सालों तक अपने पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप 60-70% पैसा अपना इक्विटी में रखना चाहिए या रखें। जी, अगले कॉलर हैं मल्होत्रा दिल्ली से। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए, एक खबर है उस पर नजर डाल के आपसे बात करेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने अब तक जून में भारतीय पूंजी बाजार में 20,574 करोड़ रुपए की शुद्ध राशि का निवेश किया है। डिपॉजिटरीज के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 12 जून तक की अवधि के दौरान एफपीआई ने शेयरों में 22,840 करोड़ रुपए की शुद्ध राशि निवेश की, लेकिन इसी दौरान ऋण श्रेणी से उन्होंने 2,266 करोड़ रुपए की राशि निकाल ली। इससे पहले एफपीआई 3 महीने लगातार शुद्ध बिकवाल रहे थे। मई में उन्होंने 7,366 करोड़ रुपए निकाले, अप्रैल में 15,403 करोड़ रुपए और मार्च में 1,10,000 करोड़ रुपए भारतीय पूंजी बाजारों से बाहर निकाले थे। मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, डू वी हैव यू ऑनलाइन? Yeah, welcome. Good evening. Good evening. Please put your question. I just wanted to know what are the hedge funds and what is the relevance of these hedge funds in today's scenario? Yes, Dhirendra. Hedge fund as a vehicle is not available to Indian investors. Hedge funds are typically a fund, a fund subscribed by very wealthy individuals abroad, and those funds are allowed to borrow money to maximize return and also hedge their position. When we, in India, the kind of mutual funds or the PMS that we get, some of the portfolio management schemes can actually hedge their position. They actually act on your behalf. But they are not funds. They are not pooled investments. And no mutual fund is allowed to hedge their position or, take, they can hedge their position, but they are not allowed to borrow at all. So hedge funds, the real point is that they can borrow money. And in a rising market, if you put 1 crore of rupees in a hedge fund and they can borrow 50 lakh rupees against those investments and invest more, so your return gets more and you incur interest on that. In a declining market, it actually comes back and hits you because you borrow money, you invest, and the investment value goes down, and then your return on the plus as well as on the decline gets magnified. Right. Ratnakar joins us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. Hello. Yes, go ahead. Put your question. हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि लार्ज कैप फंड में अभी कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है? और मैंने आदित्य बिरला सनलाइट बाल भविष्य में 19 में इन्वेस्ट किया था, तो अभी 1 साल हो गया, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है अमाउंट, तो उसके लिए क्या करें? Yes, लार्ज कैप्स। हाँ, पहले अच्छा लार्ज कैप फंड, मिराई एसेट का एक लार्ज कैप फंड है, जो काफी अच्छा लार्ज कैप फंड साबित हो रहा है। एक्सिस का ब्लू चिप, हम इस प्रोग्राम की शुरुआत में बात कर रहे थे जी, ये भी एक काफी अच्छा लार्ज कैप फंड है। SBI ब्लू चिप, तो ये कुछ आपके लार्ज कैप विकल्प है। जो ये बाल विकास फंड की आप बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि आदित्य बिरला सन लाइफ का ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, ये बल्कि आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का ये कोई स्कीम होगा। और आप देखिए कि ये इसमें आपका लगा हुआ पैसा, इसकी वजह से जो आपको इंश्योरेंस मिलता होगा और इसका स्कीम का डिटेल्स क्या है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है।
Right, and before we take more calls, let's take a look at how the monsoon is advancing. Southwest monsoon has further advanced into some more parts of Madhya Maharashtra, most parts of Marathwada and Vidarbha, some parts of Chhattisgarh and remaining parts of Odisha and West Bengal. It has also advanced into most parts of Jharkhand and some parts of Bihar. The conditions are becoming favourable for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Central Arabian Sea, some parts of North Arabian Sea, remaining parts of Maharashtra, including Mumbai, some more parts of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar, and some parts of South Gujarat and South Madhya Pradesh during the next 24 hours. Indian Meteorological Department has forecasted that isolated heat wave condition is likely over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. No significant change in maximum temperatures likely over most parts of country during the next 3 days. अगले कॉलर मुंबई से ही है हमारे साथ। विनोद, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। नमस्कार जी, मैं मुंबई से विनोद धानुका बोल रहा हूँ जी। आई एम ए रिटायर्ड सीनियर सिटीजन जी। और धीरेन्द्र जी से मेरा एक सवाल है साहब, मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है जो कि सितंबर 17 में लिया था, और कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड है जो अगस्त 18 में लिया था जी। तो अभी इनमें सब बना रहना चाहिए क्या बैलेंस एडवांटेज फंड में, या रिडीम कर लेना चाहिए? नहीं, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल रिडीम नहीं करना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए। और आपको हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा नुकसान दिख रहा होगा, लेकिन ये एक अच्छे वेहिकल है शुरुआती निवेशक के लिए, और खासकर आप जैसे निवेशक के लिए जो कि बहुत उतार चढ़ाव, आप बड़े भारी नुकसान से आप बच पाए हैं। इसके बावजूद आप थोड़े दुखी होंगे कि ये इसमें नुकसान हुआ है, और ये बिल्कुल अनुचित समय नहीं है। अगर इस पैसे की जरूरत नहीं है बिल्कुल ना निकालें। Right. N.K. Sharma joins us from Delhi. Good evening, Mr. Sharma, and welcome to Market Mantra. Dharmendra ji, namaskar. My question is, in an investment portfolio of mutual fund through SIPs, what should be the ideal breakup percentage-wise in large caps, medium caps, and small caps? Yes, Dhirendra. Ideally, any investment should reflect, I would say, the way the large cap, mid cap, small caps are defined by SEBI. If you invest in all the three companies, the three kind of stocks, I would say that 70% into large cap, next 20% into mid cap, and remaining 10% into small cap captures the whole market. But I would say that this is changeable, and most investors, if somebody is willing to assume higher risk, they should actually have 20-30% into small cap and remain. But to keep it simple, I would say that most investors will be better off by choosing a multi-cap fund or multi-cap fund, where the fund manager invests across the board, and not a very large fund, because large funds tend to avoid the small cap. So if you are invested in a multi-cap fund which is pretty large, for operational reasons, that large fund will avoid small caps, because choosing small cap stocks is not very impactful for such funds. So I would say that choose multi-cap fund and don't get into too much. Typically, it will be the format. Right, and before we wind up, let's take a look at the gold ETFs also. Gold exchange-traded funds saw net inflows of 815 crore rupees in May as investors preferred safe haven options amid stock market volatility and the coronavirus crisis. The category has been one of the better performing asset classes since last year. Since August 2019, gold ETF segment has received net inflows of 3,299 crore rupees. और अब समय आ गया है आज का कार्यक्रम समाप्त करने का। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। जी हाँ, धन्यवाद आपका। और मैं केवल एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, बल्कि अगले सप्ताह मैं इसके बारे में बता भी दूंगा कि आदित्य बिरला सन लाइफ बाल भविष्य योजना, इसके बारे में मुझे जानकारी मिली। ये नया फंड है, मुझे जानकारी नहीं। Right. इसमें रिटर्न -3.92%. Right, Dhirendra. And before we close, a quick look at the top stories. India is not only self-sufficient but has surplus food grain, says Union Agriculture Minister. Foreign investors pump in over 20,500 crore rupees, and monsoon reaches Maharashtra and Gujarat. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye.